Hello guys, welcome to our oral pathology lectures. We will teach you how to pass first to final BDS. After BDS also if you are planning for NEET MDS, we will be guiding you for that. In today's lecture we will be discussing tumors of salivary glands. One question is at most important, either pleomorphic adenoma or cylindroma or adenomyocystic carcinoma. In short notes, they might ask you ranula, mucocele, mucoepidermoid carcinoma. So all these questions you have to go through this before attempting theory exam, and in your viva also they might ask you these questions. Explain what is the difference, etc. So now what is the difference between the tumor of salivary gland and what is the difference between tumor of other tissues? So in short, when there is a tumor of salivary gland, the structures in the cells will be different from that of other. Okay, here cells will be different. In case of fibrous tissue tumor, cells will be different. Fibroblast will be there. Hyperplasia of fibroblast will be there. Here there will be different types of cells. Okay, the first question is pleomorphic adenoma. Okay, first of all, they will ask you to classify it. Our WHO classified this into malignant tumors. Okay, and after that, they give another classification. In this, we have mucoepidermoid carcinoma, adenocystic carcinoma. Okay, these questions may be asked for short note or full question. This also short. Okay, then it is few more questions will be asked. Afterwards, if there is not malignant, then we can go for undifferentiated carcinoma, large cell neuroendocrine carcinoma. Okay, then lymphoepithelial carcinoma, squamous cell carcinoma. And if there are not malignant, then we can find that they are cyeloblastoma. Okay, in malignant, these these many tumors come. Now here, new type is there benign tumors. In benign tumors, pleomorphic adenoma, myoepithelioma, etc. Parthian tumor. This also question may be asked. Benign papillary cystinoadenoma lymphomatosum. Other name for Warthin's tumor. Okay. So these questions may be asked. Now, apart from this, we have non-neoplastic. Okay. So first they told that there are malignant tumors, then benign, and then non-neoplastic. Okay. Now, in case of benign soft tissue lesions, we have hemangioma, etc. Okay. Now, pleomorphic adenoma. Okay, the first sentence regarding this is it's the most common tumor. And the gland which is most affected is parotid gland. Okay. So till now what we have did is classification. In this classification, malignant, benign, and non-neoplastic. Okay. After that, they are telling you to write about pleomorphic adenoma. About pleomorphic adenoma, it's the most common tumor of salivary gland, and gland which is most affected is parotid. Okay, it's a benign mixed tumor.
Now clinical features. Okay. In the beginning, I told you that in the clinical features we will have a difference of the tissues also. Its representation. The first of all, since it is a tumor, oma means tumor, adenoma means salivary gland tumor. So there will be obviously some swelling or growth. Okay. So here they are writing that it's a slow growing, well delineated exophytic growth. Exophytic means one above the other, like cauliflower. Okay. So here we'll be having exophytic growth, slow growing, well delineated. Okay. There will be clear boundary between the affected and non-affected part. Duration is fifth and sixth decade. Okay, so what you will write here, you will not write this whole sentence. You will just write age group. Okay, here growth, slow. Next point, boundaries, clear or demarcated. Okay, and exophytic. Now surface. Okay, just write smooth, lobulated. Okay, then pain, so no pain. Then consistency, soft or rubbery and freely movable. Okay, in this way you have to short your or content. You have to answer to the point. Then parotid gland is usually superficial. Okay, whenever you palpate this angle of mandible, below this you will find that there is parotid gland. Okay, so they are somewhat superficial and they will be generally this tumor happens or arises in the superficial lobe. Okay, our parotid gland is divided into superficial lobe and or deep lobe. Okay, the superficial lobe will be affected by pleomorphic adenoma. This demarcation line is called Petty's line. Okay, this Petty's line is a line where facial nerve lies in the parotid gland. Okay, this nerve divides the parotid gland into superficial and deep, and generally pleomorphic adenoma is happening in superficial lobe. Okay, sometimes lesion can be multinodular and sometimes they can have enormous size. Okay, then if this pleomorphic adenoma happens in buccal mucosa or lip, okay, it presents small, painless, well-defined, movable nodular lesion with intact overlying mucosa. ठीक है. Now histopathology. तो क्लिनिकल फीचर्स के बारे में आपको शॉर्ट में बता देते हैं. पहले तो एज ग्रुप आता है, ठीक है, फिर पेन नहीं आता है, फिर साइज के बारे में बोला, कैसी है ग्रोथ, कैसे है और एक्सोफाइटिक ग्रोथ है, पेन नहीं है, फिर वो कंसिस्टेंसी कैसी है वो बताया, फिर उसका लोकेशन क्या है तो पैराटिड के अंदर सुपरफिशियल में होगा, फिर मल्टीनोडुलर है, ठीक है, और अगर लीप और बकल म्यूकोसा में आएगा तो वो स्मॉल और पेनलेस रहेगा. ठीक है, अब आता है हिस्टोपैथोलॉजी. डायग्राम मस्त ड्रॉ कर दीजिए पहले तो, बाकी तो जो यहाँ लिखा है वही उसके अंदर लिखना है. तो देखिए, हमने आपको बताया था कि पहले ही जो नाम से सेल्स की ग्रोथ होगी वो अलग अलग होंगे. तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, वो डिफ्यूज शीट या क्लस्टर्स में जुड़ जाएंगे. ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स थोड़े ग्लैंडुलर और ज्यादा हो गए. ठीक है, नियोप्लास्टिक सेल्स, क्योंकि ये ट्यूमर टाइप है
तो वो कैसे होंगे, पॉलीगोनल होंगे, स्पाइनल होंगे। तो पहले आपको लिखना है एपिथेलियल सेल्स के बारे में, फिर नियोप्लास्टिक सेल्स के बारे में लिखना है, और डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देंगे, ठीक है, नियोप्लास्टिक सेल्स। फिर क्योंकि ये सैलिवरी ग्लैंड और उसकी डक्ट के ट्यूमर है, ठीक है, इसमें डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग साइज अलग होगी, शेप अलग होगा, ऐसे, ठीक है। फिर डक्ट का आपको एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आपको क्यूबोइडल और कॉलोनर सेल्स दिखेंगे, ठीक है, और बाहर मायोएपिथेलियल सेल्स दिखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे डायग्राम में दिखा देना है, डायग्राम तो बड़ा है, फिर आपको डक्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आउटर लिखना है कि मायोएपिथेलियल सेल्स, अंदर लिखना है कि क्यूबोइडल और कॉलमनर सेल्स, ठीक है। तो अलग अलग करके आपको ये समझाना है। फिर एपिथेलियल्स जो होंगे उसमें स्क्वेमस मेटाप्लाजिया हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का वो हो सकते हैं। मेटाप्लाजिया मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ इनटू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फिर कभी कभार केराटिन पल्स भी देखने को मिलेगी। मेटाप्लास्टिक एपिथेलियल सेल्स, तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी, सब तरह के सेल्स के बारे में समझाना है। एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, मेटाप्लास्टिक एपिथेलियल सेल्स हो गए, फिर नियोप्लास्टिक सेल्स के बारे में समझाना है, फिर डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स के बारे में समझाना है, वो अंदर होंगे, ठीक है। तो अंदर वो क्यूबोइडल और कॉलमनर होंगे, और बाहर होंगे मायोएपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ऐसे आपको ये जो मैंने लिखा, एपिथेलियल सेल्स, मायोएपिथेलियल सेल्स, मेटाप्लास्टिक मायोएपिथेलियल सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल्स, ये सब आपको डायग्राम में बता देना है। फिर हाइलाइजेशन भी होगा, ठीक है, और वो स्ट्रक्चरलेस होमोजेनस मटेरियल आपको देखने को मिलेगी कनेक्टिव टिश्यू। फिर म्यूकोइड मटेरियल्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा के बारे में क्या क्या पढ़ा, पहले डेफिनेशन आई, फिर इटियोलॉजी आई, और क्लिनिकल फीचर। इटियोलॉजी में तो आपको ये लिखना है कि ये इडियोपैथिक है, हेरिडिटरी है, ठीक है, ट्रॉमेटिक है, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सब आप लिख सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आपको सब समझाया कि एज, जेंडर क्या आएगा, एज ग्रुप क्या आएगा, फिर पेन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी कैसी होगी, उसका लीजन का सरफेस कैसा होगा, वो आपको समझाना है, ठीक है। फिर आइए हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में तो जितने सेल्स आपको याद आ रहे हैं, एपिथेलियल, मायोएपिथेलियल, नियोप्लास्टिक, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, होमोजेनस मटेरियल होगा, वो कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, इसलिए तो ये आप सब इतने बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे उसका ट्रीटमेंट भी आएगा। ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं होता है, उसका सर्जिकल एक्सेशन ही होता है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आए तो वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। अब म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा, ये शॉर्ट नोट में कभी कभार आ सकता है, और ये क्लासिफाई सैलिवरी ग्लैंड डिसीज भी आ सकती है। तो पहले हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, बेनाइन ट्यूमर्स, नॉन नियोप्लास्टिक, ठीक है। अब म्यूकोएपिडर्मल कार्सिनोमा के बारे में समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की, ठीक है। कभी कभार वो अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, खाली ट्रीटमेंट आप बताइए। तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की ट्रीटमेंट तो क्या है, बेस्ट बाय सर्जिकल एक्सेशन, ठीक है, उसको निकाल ही देना है। फिर आप ये भी बता सकते हो कि क्योंकि फेशियल नर्व है अंदर,
ठीक है, तो खाली सुपरफिशियल लोब भी निकाल सकते हो और फेशियल नर्व को बचा सकते हो। ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट जब आए तो आपको ये याद रखना है कि फेशियल नर्व के बारे में भी आपको समझाना है। ठीक है, फिर जो डीप लोब में होगा, ठीक है, उसमें आपको लिखना है कि फेशियल नर्व इंजरी हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो तो डायग्राम ड्रॉ कर देना है कि ऐसे सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये पैराफिट का ऐसा डायग्राम हमने किया था फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि फेशियल नर्व आपको प्रिजर्व करने का है। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है ना, म्यूको एपिडर्मल कार्सिनोमा, ठीक है, वो हम समझा रहे हैं। वो है म्यूको एपिडर्मल ट्यूमर। ठीक है, म्यूको एपिडर्मल कार्सिनोमा वो क्या है? तो इट्स अ टाइप ऑफ मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो आपको कोई भी ट्यूमर आए ना तो उसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, तो पहले ये समझाना है कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, और जब भी आपको क्लासिफिकेशन आता है तो वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन जब लिखोगे ना तो आपको 3 या 4 मार्क मिल जाएंगे 7 में से, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो आपको 3 मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अब मुझे क्या लिखना है क्या नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप लिख ही नहीं पाओगे। एक ट्यूमर आता है जैसे कि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, तो भी उसका कंटेंट आप दूसरे में लिख सकते हो। लिखोगे तो आपको कोई ना कोई मार्क मिल जाएंगे। तो म्यूकोएपिडर्मल ट्यूमर वो क्या है? तो मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड नियोप्लाज्म है, उसी तरह जैसे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में लिखा था। ठीक है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एग्रेसिव है। ठीक है, अब उसकी पैथोजेनेसिस, तो वो क्या है उसकी पैथोजेनेसिस? तो जो रेट्रोमोलर एरिया होता है ना, लोअर 8 के बाद, ठीक है, 6 7 8 मोलर्स होते हैं, इसके पीछे रेट्रोमोलर आता है लोअर में। वहां जो म्यूकस ग्लैंड्स है ना, ठीक है, वो एंट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, जब डेवलपमेंट होता है ना तो म्यूकस ग्लैंड्स बोन के अंदर एंट्रैप हो जाएंगे और फिर वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उसका इटियोलॉजी है। फिर वो क्या होगा, उसमें एम्ब्रियोनिक जो रेमनेंट्स हो गए ना, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, वो मैंडिबल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो बोन के अंदर सलाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर वो टिश्यूज कवर हो जाएंगे, फिर वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे बोन को डैमेज करेंगे। तो जो म्यूकोज, ये जो म्यूकोजल टिश्यू वाले सेल्स थे, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स वाले, तो वो अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, म्यूकस सेल्स अंदर चले जाएंगे और फिर they will be found in the lining of dentigerous cyst associated impacted third molars undergoing neoplastic transformation। तो ये लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि कभी कभार जो म्यूकस ग्लैंड बोन के अंदर चले जाते हैं, वो कभी कभार जब डेंटिजरस सिस्ट भी बनती है ना, उसके अंदर भी लाइनिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज इन्वेजन फ्रॉम लाइनिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, तो म्यूकोएपिडर्मल कार्सिनोमा इज एन एग्रेसिव ट्यूमर, इज ए ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। फिर आपको उसके लिखना है इटियोपैथोजेनेसिस, तो क्या होगा आपको लिख लेना है कि रेट्रोमोलर जो होते हैं म्यूकस ग्लैंड, वो बोन के अंदर आ जाते हैं, फिर वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और उसके कारण ये म्यूकोएपिडर्मल कार्सिनोमा होता है।
ये सेल्स डेंटिनस सिस्ट में भी कभी कभार पाए जाते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी कुछ नहीं, हेरिडिटरी है और डेवलपमेंट का ये डिसऑर्डर हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा का। ठीक है, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर एग्रेसिव है वो लिखा, फिर उसका इटियोपैथोलॉजी, अब क्लिनिकल फीचर्स। एज ग्रुप, ठीक है, तो ये सब नहीं लिखना है, ट्यूमर अकर्स एट द एज, खाली ये लिखना है एज बस। तो ये 32 50 ईयर्स। फिर साइट, तो पैरोटिड एंड माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ पैलेट, लिप्स, बकल म्यूकोसा, टंग, रेट्रोमोलर एरियाज। अब कैसा है वो, पेन है तो नो पेन, साइज तो स्लो एनलार्जिंग है। ठीक है, और कभी कभार वो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा को भी बना सकता है। फिर जब भी ये पैरोटिड ग्लैंड का कोई डिसऑर्डर आए, जब भी कोई ग्लैंड का आए, तो आपको तो पता ही है कि फेशियल नर्व बगल में ही है, तो जो कि ग्लैंड खराब हो जाएगी तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो चीज होगी फेशियल नर्व वो भी खराब होगा, तो फेशियल नर्व पाल्सी भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्लिनिकल फीचर्स याद करवाने हैं। फिर फिर से वो आया कि वो स्लो एनलार्जिंग है और कभी कभार ही वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी साइज होती है और वो लो ग्रेड है, धीरे धीरे वो ग्रो होता है। ठीक है, जो हाई ग्रेड होता है ना, वो ही पेन करता है और जल्दी ग्रो होता है। ठीक है, जो हाई ग्रेड वाला होगा वो आजू बाजू के टिश्यू को एंट्री भी ले लेगा उसमें, और लिम्फेडेनोपैथी भी होगी। लिम्फेडेनोपैथी मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएंगे वो म्यूकोस इन्फेक्शन में या सेल्स में। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको यही लिखना है। ठीक है, पहले तो एज के बारे में लिखना है, फिर ग्रोथ स्लो है, फिर पेनलेस है, फिर दो टाइप के हैं, लो ग्रेड और हाई ग्रेड। ठीक है, फिर पैरोटिड के अंदर जो स्ट्रक्चर है फेशियल नर्व वो भी अफेक्ट होगी, उससे फेशियल नर्व पाल्सी होगी। ऐसे आपको क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं। अब हिस्टोपैथोलॉजी, ट्यूमर इज एनकैप्सुलेटेड। ठीक है, जो ट्यूमर होगा ना उसके ऊपर एक लेयर होगा कैप्सूल जैसा। ठीक है, फिर उस वो बोन के अंदर ही पाया जाएगा। अब जो एनकैप्सुलेटेड होगा वो 3 टाइप्स के सेल्स कनेक्ट करेगा ट्यूमर। ठीक है, आगे हमने पढ़ा है प्लियोमॉर्फिक एडिनोम में, मैं यहाँ पे उसके नाम लिखता हूँ, एपिथेलियल सेल्स, मायोएपिथेलियल सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल्स, ठीक है, क्यूबोइडल सेल्स, और फिर वंस अगेन मायोएपिथेलियल सेल्स। ये कॉलमनर सेल्स भी थे, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स भी थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए म्यूकोएपिडर्मोइड में क्या क्या पाया जाता है, म्यूकोसेक्रेटिंग सेल्स, एपिडर्मोइड, और दोनों के बीच के टाइप का सेल्स। तो ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का है और ये है म्यूकोएपिडर्मल कार्सिनोमा का। ठीक है, अब ये सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये लोगों ने 3 टाइप के डिफ्रेंशिएशन दिए हैं, वेल डिफ्रेंशिएशन, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड और इंटरमीडिएट। ठीक है, अब लिखना तो आपको आता ही होगा, जो लो डिफ्रेंशिएटेड होगा उसमें थोड़ा कम होगा। ठीक है, प्रोमिनेंट म्यूसिन फील्ड जगह होगी, सिस्टिक स्पेस होगी, सेलुलर एटाइपिया होगा और ज्यादा म्यूकोसेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, लो ग्रेड में। तो आपको ये इजी करने के लिए क्या करना है, ये 3 लाइंस बना देनी है यहाँ पे। यहाँ पे लो ग्रेड लिखना है, ठीक है, यहाँ पे इंटर ग्रेड, और यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक, या हाई ग्रेड। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन कौन से सेल्स इसमें पाए जाते हैं, इसमें अलग क्या है, ऐसे करके क्लासिफिकेशन आपको लिख देना है। ठीक है, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो आपको तो पता ही है जितने भी सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स होंगे वो सब आएंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक दूसरे के अंदर। ठीक है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अगर पेशेंट आता है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का, तो ये सारे आएंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और ये हमारा म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा भी आ जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, तो कंजर्वेटिव एक्सिशन कर देना है।
देखो फिर से वही बात आएगी, पैरापिट ग्लैंड के अंदर है, फेशियल नर्व को बचाना है, वो हो सके तो सुपरफिशियली निकाल देना, पूरी की पूरी ग्लैंड निकालनी है तो फिर आपको फेशियल नर्व को बचाना है। ऐसे आपको धीरे धीरे लिखने आना चाहिए। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा दूसरा नाम है सिलिंड्रोमा, बहुत सारे नाम है इसके, लेकिन यहाँ पे भी सिलिंड्रोमा से नाम चला लेते हैं। ठीक है। एनुमरेट जो डिसीज है वो क्या है, वो आपको क्लासिफिकेशन ही लिख देना है। ठीक है। एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा के बारे में भी हम समझते हैं। तो पहले तो मैलिग्नेंट है। ठीक है। किस में से आते हैं, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सैलिवरी ग्लैंड की जो एपिथेलियम होती है ना, उसमें से आते हैं। दूसरा नाम है सिलिंड्रोमा। क्लिनिकल फीचर्स, एज 50 टू 70, जेंडर फीमेल्स, ज्यादातर सब, और कोई पैरापिट को ही अफेक्ट करेगा, और दूसरी साइड्स जो माइनर ग्लैंड्स होगी सैलिवरी की, पैलेट पर, टंग, लैक्रिमल ग्लैंड्स, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, वहां पर देखने को मिलेगा। अब लीजन कैसा होगा, तो वो फिर से वही सेम टू सेम आएगा, स्लो एनर्जी होगा। अब इसमें भी ये लिख सकते हो कि स्लो टाइप का होगा, वो धीरे धीरे ग्रो होगा, हाई मतलब फास्ट ग्रोइंग होगा, वो दूसरे टिश्यूज में भी जा सकता है। ऐसे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, आपको लिखने की मनाही नहीं है, और वो लोग आपका पेपर पढ़ने वाले हैं नहीं। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नहीं लिखोगे ना, तभी जाके आपको दिक्कत होगी। ठीक है। तो अभी पेन, पेन के बारे में क्या लिखा है, तो पेन होगा इसमें। ठीक है। क्योंकि ये मैलिग्नेंट टाइप का है ना, इसलिए। और आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को वो अफेक्ट करता है, जैसे कि कोई नर्व होगी तो उसको एनेस्थेटाइज कर देगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, तो जाके एनेस्थेसिया पेरेस्थेसिया हो सकता है। कभी कभार बेल्स पाल्सी भी हो सकता है, फेशियल नर्व अफेक्ट होगी तब। ठीक है। फिर कभी कभार वो ट्यूमर जो होता है ना, वो नीचे अपना बेस अच्छी तरह से फिक्स कर लेता है। ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ ट्यूमर, और आजू बाजू वो इन्वेड भी करता है। ठीक है। आज ट्यूमर यहाँ पे होगा, तो कल अपना अपना साइज बढ़ाकर आजू बाजू के टिश्यूज को खराब कर देगा, ट्यूमर की साइज बढ़ाएगा। ठीक है। उसकी एक टेंडेंसी ऐसी है कि वो पेरीन्यूरल, ठीक है, नर्व्स के आजू बाजू जगह जो होती है ना, वहां से भी वो चले जाते हैं। ठीक है। तो ये उसके क्लिनिकल फीचर्स थोड़े अटपटे हैं, आपको ऐसे याद रखना है। अब हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, मैलिग्नेंट टाइप सेल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो पहले तो क्या है, पॉलीगोनल सेल्स देखेंगे, क्यूबोइडल सेल्स। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें अलग अलग सेल्स आते हैं। ठीक है। तो आपको म्यूकोएपिडर्मोड में भी अलग टाइप के सेल्स मिले, लियोमॉर्फिक एडिनोमा में भी अलग टाइप के सेल्स मिले, सिलिंड्रोमा भी अलग टाइप के सेल्स मिल रहे हैं। तो आपको बस यही आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है। सेल्स जो है वो बेसल सेल्स को रिजेंबल करेंगे। ठीक है। और हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई मिलेगी, और मिनिमम माइटोटिक एक्टिविटी। तो ये आप डिस्प्लेसिया का जो फीचर्स है ना, वो आप लिख सकते हो, एपिथेलियल डिस्प्लेसिया। ठीक है। फिर कभी कभार ट्यूमर सेल्स के डबल लेयर भी पाए जाते हैं, वो डक्ट में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। और बीच में क्या होगा, इयोसिनोफिलिक कोएगुलम। तो देखो अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ये सेल्स है ना ऐसे, और बीच में इयोसिनोफिलिक कोएगुलम होगा। इसको बोलते हैं स्वीज चीज अपीयरेंस। ठीक है। फिर जो कनेक्टिव टिश्यू में होगा, आपको तो पता ही है, हाइलिनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है। और ट्यूमर सेल्स के आजू बाजू वो सिलिंडर्स के रूप में पाए जाएंगे। फिर मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या है कि उसका स्प्रेड होता है। ये सेंटेंस आपको लिखना है और ऐसे एग्जाम में ब्लॉक बना देना है कि इसकी स्प्रेड पेरिन्यूरल भी होती है और नर्व्स के अंदर भी होती है। इसको बोलते हैं न्यूरोट्रॉफिज्म। ठीक है। इसको नर्व्स के साथ थोड़ा ज्यादा लगाव है। अब वो इसलिए इसी के कारण इसका रिकरेंस ज्यादा है। ठीक है।
तो अगर आपको पूछे एग्जाम में कि रिकरेंस ऑफ सिलेंड्रोमा, तो आप बोलोगे कि इसका न्यूरोट्रॉफिज्म जो है ना उसके हिसाब से रिकरेंस है। तो न्यूरोट्रॉफिज्म का मतलब क्या है कि वो पेरिन्यूरल और इंट्रान्यूरल दोनों में वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। अब ट्रीटमेंट, तो आपको ट्रीटमेंट पता ही होगा, निकाल देना है। मैलिग्नेंट होता है ना तो उसको तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर आपको बहुत सारी चीजें लिख सकते हो कि नर्व्स को बचाना है, फेशियल नर्व को ध्यान रखना है, पेरिटल में है तो उसका सुपरफिशियल जो लेयर है वही अगर चल सकता है तो वही आपको निकालना है। ऐसे करके आप पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि दूसरे का एक दूसरे में क्या क्या डिस्टिंक्शन आएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, तीनों को एक लाइन में लिख देना है। फिर उसमें जो जो चीज आती है अलग अलग वो आपको लिखने का है। ठीक है। कोई मुझे टॉपिक रिपीट करना हो तो बोलिए, वरना मैं आगे करता हूँ। जोग्रेन सिंड्रोम। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो सलाइवरी, लैक्रिमल और एक्सोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करता है, ये ट्यूमर है या सिंड्रोम है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तीन चीज को, सलाइवा में कमी हो जाएगी, आंखों में आंसू कम हो जाएंगे और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो प्राइमरी जोग्रेन जो है ना उसमें उसका दूसरा नाम है सिक्का सिंड्रोम। ठीक है। उसमें ड्राई आइज आएगी। ठीक है, मतलब आंख ड्राई हो जाएगी और माउथ भी ड्राई, सलाइवा की क्वांटिटी कम हो जाएगी। सेकेंडरी जोग्रेन में क्या आएगा, तीन चीज आएगा। क्या क्या, ड्राई आइज, ड्राई माउथ, ठीक है, और जेरोप्थोल्मिया। ठीक है। और कोलेजन डिसऑर्डर्स भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। क्या क्या, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सिस्टमिक लपर्स एरिथमेटिस। ठीक है। तो आइज तो था एक जगह, माउथ भी था प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या ऐड हुआ, आइज, माउथ और कोलेजन वाला डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक लपर्स एरिथमेटिस हो। ठीक, तो प्राइमरी और सेकेंडरी जोग्रेन सिंड्रोम के बारे में आना चाहिए। अब क्लिनिकल फीचर्स तो आपको पता ही है, अगर सलाइवा ना हो तो क्या होगा, आंख में पानी ना हो तो क्या होगा, वो सब आपको लिख देना है। फिर ट्रीटमेंट, आप सलाइवरी सब्स्टिट्यूट भी दे सकते हो। हिस्टोपैथोलॉजी में तो आपको ये लिखना है कि इंफ्लेमेटरी सेल्स पाए जाएंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, सलाइवरी ग्लैंड की एट्रोफी हो जाएगी, खराब हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड का जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो सब आपको लिखना है। ट्रीटमेंट, तो स्टीरॉइड्स दे सकते हो लेकिन ये बहुत यूजफुल नहीं होता है। आप आई ड्रॉप्स दे सकते हो, आई खराब ना हो जाए इसलिए। एंटी फंगल ड्रॉप्स दे सकते हो। फिर यहाँ पे सलाइवरी सब्स्टिट्यूट्स भी दे सकते हो, जेरोस्टोमिया जब होगा ना तब। ठीक है। अब आता है म्यूकोसिल। म्यूकोसिल क्या है, तो वो ऐसा है कि जो म्यूकस ग्लैंड होती है उसकी डक्ट कभी कभार ब्लॉक हो जाती है, वो इन्फ्लेम हो जाती है। तो लिप के अंदर ऐसा बलून टाइप हो जाएगा। ठीक है, बुलस टाइप, ब्लू टाइप होगा, ऐसा इंक्रीज हो जाएगा साइज में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं म्यूकोसिल। तो म्यूकोसिल का दूसरा नाम क्या है, म्यूकोस एक्सट्रावाजेशन फेनोमेनन और म्यूकस एस्केप रिएक्शन। जो म्यूकस होगा वो बाहर जम जाएगा लिप के अंदर कोई जगह पर। ठीक है, तो पेशेंट को थोड़ा एबनॉर्मल लगेगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी। अब वो क्या है, तो स्वेलिंग जैसा दिखेगा। ठीक है, और कहाँ दिखेगा, तो जहाँ माइनर सलाइवरी ग्लैंड इंजर्ड होगी ना वहां पे कुछ ज्यादा ही सलाइवा जमा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो होता है। अब टाइप्स, तो एक म्यूकस एक्स्ट्रावाजेशन। ठीक है, उसमें क्या आएगा, म्यूकस बाहर आएगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उसमें एपिथेलियल लाइनिंग नहीं है और उसको सुडोसिस्ट भी बोल सकते हैं। और म्यूकस रिटेंशन, उसमें म्यूकस अंदर रहेगा। ठीक है, डक्ट के अंदर, और उसमें एपिथेलियम होगी। तो दो चीजें डिफरेंस है, एक तो बाहर आएगा म्यूकस, एपिथेलियम नहीं है। एक म्यूकस अंदर रहेगा, एपिथेलियम है, उसको ट्रू सिस्ट बोलते हैं। ठीक। अब क्लिनिकल फीचर्स, तो आपको यही लिखना है कि वो लिप के अंदर होता है, कभी कभार पैलेट के अंदर, ज्यादातर लिप में ही पाया जाता है। ठीक है, थर्ड डेकेड में पाया जाता है। वो पेनलेस स्वेलिंग होता है, पेशेंट को इंटरफियर करेगा खाने के टाइम। वो राउंड, ऑल और स्मूथ होता है। कभी कभार वो ब्लूइश मास जैसा दिखता है।
फ्लक्चुएंट होता है, फ्लक्चुएंट मतलब बलून की तरह, यहाँ से आपने प्रेस किया तो यहाँ थोड़ा शेप में चेंज होगा। फिर सॉफ्ट नोडुलर भी होगा। अब हिस्टोपैथोलॉजिक फीचर्स, तो आपको लिखना है कि म्यूकोस रिटेंशन और म्यूकोस एक्सट्रावेजेशन में क्या होगा। इरेगुलर जो होंगे अलग अलग पूल्स होंगे किसके, इयोसिनोफिलिक म्यूसिनस मटेरियल के, ठीक है। फिर मैक्रोफेजेस आया जाएगा, इन्फ्लेमेटेड वाला जो होगा ना मैक्रोफेजेस उसको बोलते हैं म्यूसिनोफेज। तो ये सेल्स के नाम आपको लिख देने हैं कि इयोसिनोफिलिक मटेरियल देखने को मिलेगा, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिखना है कि इयोसिनोफिलिक मटेरियल है और यहाँ पे लिखना है कि म्यूसिनोफेज सेल्स है, ऐसे, ठीक है। फिर सारे इन्फ्लेमेटरी वाले सेल्स आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी वाला टिश्यू है। जो सिस्ट होगी वुमेन की, ठीक है, वो इयोसिनोफिलिक कोएगुलम से भर जाएगी। अब उसकी ट्रीटमेंट, तो अभी मैंने कल ही क्लिनिक पे निकाला, ये आपको सर्जिकली एले देना है आजू बाजू और उसको निकाल देना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिकुलर सिस्ट, ठीक है। आपको उसमें डाउट था, तो पहले सिस्ट का क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर रेडिकुलर सिस्ट के बारे में भी हम आपको समझा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लासिफाई सिस्ट ऑफ ओरल रीजन और डिस्कस रेडिकुलर सिस्ट। तो रेडिकुलर सिस्ट क्या है, तो ज्यादातर वो रूट जो होगा उसके आजू बाजू यहाँ पाई जाएगी, ठीक है। तो वो एपिकल पेरिडोंटल सिस्ट है या पेरीएपिकल सिस्ट है या डेंटल रूट एंड, जहाँ पे रूट का एंड होता है ना तब। अब ये भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। वो इन्फ्लेमेटरी ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल सिस्ट है, इन्फ्लेमेशन से होती है, डेवलपमेंटल सिस्ट नहीं है, ठीक है। फिर कॉमन सिक्वल इन प्रोग्रेसिव चेंजेस। अब देखो आपने कोई क्लिनिक में पेशेंट आया, पल्प खराब है, आपने कोई ट्रीटमेंट की नहीं, तो क्या होगा, पल्प को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी खराब पल्प को, वो यहाँ पे अंदर बैक्टीरिया वायरस टॉक्सिन्स सब जमा होकर एक सिस्ट लाइनिंग बना देंगे, ठीक है। इसके कारण वो रेडिकुलर सिस्ट होता है। तो इसकी इटियोलॉजी तो आपको पता है चली गई होगी, कैरिस, ट्रॉमा, नेक्रोसिस ऑफ पल्प, इन्फ्लेमेशन ऑफ पल्प, ये सब आपको लिखना है। और कहाँ पे होता है, तो एपेक्स ऑफ टीथ, ठीक है, ये टीथ है उसका एपेक्स है, वहां पे ये होता है। अब पैथोजेनेसिस वो क्यों होता है, ठीक है, वो इसलिए होता है कि जो एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मालासेज है ना, ठीक है, पहले तो टूथ को नॉन वाइटल होना चाहिए। नॉन वाइटल कैसे होगा, कैरिस के कारण नॉन वाइटल हो जाएगा, ट्रोमा के कारण नॉन वाइटल होगा। जब नॉन वाइटल टूथ होगा ना, तब जाके जो एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मालासेज है ना, ठीक है, ये सेल रेस्ट, उसका प्रोलिफरेशन हो जाएगा और सिस्टिक डीजनरेशन हो जाएगा, तब जाके वो सिस्ट बन जाएगी, ठीक है। कैसे, तो पहले तो नॉन वाइटल टूथ के अंदर एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मोलासेस, उसका प्रोलिफरेशन होगा और उसका सिस्टिक डीजनरेशन होगा। तो आपको नोट्स में ऐसे शॉर्ट में लिख देना है इसका इटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है। अब इनिशियल फेजेस है इसके, पहले इनिशिएट होता है, प्रोलिफरेट होता है, सिस्ट होता है और एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। अब सारे स्टेजेस को समझाने हैं। तो आपको पता ही होगा इनिशिएशन में क्या होगा, कि पहले बैक्टीरिया आएगा, फिर वो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। फिर प्रोलिफरेट में क्या आएगा, स्टिमुलेट के बाद वो प्रोलिफरेट होगा, ठीक है, और वो धीरे धीरे प्रोलिफरेट हो जाएंगे। फिर प्रोलिफरेशन के बाद वो क्या हो जाता है, सेल इतने ज्यादा ग्रो होते हैं ना क्वांटिटी में, कि बीच में जगह छोड़ देते हैं, ये इसलिए सिस्ट टाइप बन जाता है। तो प्रोलिफरेशन में ये आएगा, यानी कि सिस्टिफिकेशन, ठीक है। तो ऐसे आपको बना देना है, फेज ऑफ इनिशिएशन, प्रोलिफरेशन, सिस्टिफिकेशन, और फिर बाद में आपको लिखना है कि वो एनलार्जमेंट हो जाएगी, सेल्स ग्रो होते जाएंगे और बड़ी बड़ी वो होती जाएगी, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस में तो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा, कभी कभार पेशेंट क्या करेगा, टीथ में पेन होगा तो दवाई ले लेगा, लेकिन जब साइनस बाहर निकलेगा ना, साइनस मतलब पस क्या करेगा, गम्स को पियर्स करके बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं हम साइनस,
ठीक है, जहां से पस निकलता है उस कैविटी को बोलते हैं हम साइनस। तो जब साइनस दिखेगा तब जाके पेशेंट क्लिनिक में आएगा कि सर मुझे इसमें पस निकल रहा है, दुख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये उसकी सारी थियरी है। अब एपिथेलियल जो सेल्स होंगे ना सिस्टिक लाइनिंग के, उसमें कभी कभार ऐसे पावर भी होते हैं कि वो बॉन्ड को रिजॉल्व करने वाले फैक्टर्स निकालेंगे, तो उससे बॉन्ड भी टूट जाएगा और सिस्ट की एक्सपांशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो क्या हुआ फेजेस में? इनिशिएशन, प्रोलिफरेशन, सिस्टिक और एनलार्जमेंट, ये सारे पॉइंट्स आपको समझाने हैं। फिर क्लिनिकल फीचर्स आया। क्लिनिकल फीचर्स में एज ग्रुप, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेकेड, मेल्स, मैक्सिलरी एंटीरियर्स के अंदर होता है ज्यादातर। ठीक है, फिर ज्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है। मैंने बताया आपको कि वो नॉन वाइटल टूथ कब बनता है, लंबे समय तक वो बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट कोई करता नहीं, कैरिस की ट्रीटमेंट करता नहीं, नेक्रोसिस की करता नहीं, तब जाके नॉन वाइटल टूथ बनता है, इसलिए वो एसिम्टोमेटिक होता है। नॉन वाइटल टूथ में ये देखने को मिलता है। ठीक है, स्मॉल सिस्टिक लीजन्स हो गए ना, उसमें सिम्टम होंगे नहीं, और लार्ज में बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, पेन होगा, एनलार्जमेंट होगा, बोन को भी वो एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, बोन अगर डिस्ट्रक्ट हो गया तब जाके हमको बोन का स्प्रिंगिनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, बोन के अंदर स्प्रिंग टाइप इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये जब सिस्ट होती है ना, वो सेकेंडरी इन्फेक्टेड होती है, आजू बाजू का कोई इन्फेक्शन इसमें लग जाता है, तो हम बोलते हैं उसको सिस्ट एप्सिस। ठीक है, फिर आता है हिस्टोलॉजिक फीचर्स। अब उसके हिस्टोलॉजिक फीचर्स, ठीक है, क्या आएंगे? तो ज्यादातर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग होगी। ठीक है, फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और रेस्पिरेटरी टाइप्स के एपिथेलियम होंगी। तो आपको पहले एपिथेलियम लिख देना है, उसके अंदर लिखना है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और कुछ नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो कौन कौन सी बॉडीज होती है? हाइलाइन और रस्टन बॉडीज, बस ये आपको लिख देना है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू वॉल में होगी। चौथा पॉइंट, फाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज होंगे। ठीक है, फिर इंफ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होगा, उसके अंदर लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स दोनों देखने को मिलेंगे। अदर टाइप के हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग्स भी देखने को मिलेंगे, हेमरेज देखने को मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स देखने को मिलेगा। ये तो एक्स्ट्रा ही है, लेकिन जो मेन मेन है वो भी आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा तो कॉमन सब में लिख ही सकते हो। अब रेडियोलॉजिक फीचर, तो आप रेडियोग्राफ निकालोगे ना, तो टूथ के नीचे मस्त वाली लाइनिंग होगी, ऐसा सिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो मस्त वाली लाइनिंग होगी, साइज उसकी अलग अलग होगी। ठीक है, ओवल टाइप का होगा। ठीक है, ऐसे एफएसएड होता है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो सिस्ट नहीं होती है। सिस्ट का थोड़ा यूनिफॉर्म साइज होता है। ठीक है, और सिस्ट के ऊपर मस्त वाली रिंग होगी, जो नॉर्मल बोन होगा ना वो रेडियो ओपेक दिखेगा। अब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आपको क्या करना है? टूथ के अंदर जो भी खराब चीज है उसको निकाल देना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देना है। ठीक है, फिर उसको क्राउन लगा देना है। अगर ज्यादातर वो खराब है टूथ, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं, तो आपको टूथ को निकाल देना है। फिर सिस्ट ज्यादा है, छोटी है तो इन्यूक्लिएट कर सकते हो, ज्यादा बड़ी है तो मार्सुपिलाइजेशन करना है, सिस्ट को छोटी होने देना है, फिर उसको निकालना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो भी डाउट थे आपको समझा दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं, हम वो लेक्चर लेंगे। आपको अगर रिवीजन करना है तो भी हम आपको 1 या 2 कलाक वो लेक्चर लेके आपको समझा देंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पूछनी चाहिए। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। गाइस, हमारी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर है। हम लोग एआई मेडिकल डेंटल एकेडमी है। हम लोग आपको फ्री में एजुकेशन देने वाला है। डेंटल के सारे वीडियोस अवेलेबल है, सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, जीपीएससी, डेंटल में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जीके के जो भी सब्जेक्ट है, वो हमने सारे डेंटल की टेस्ट सीरीज में रख दिए हैं, ताकि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें यूज हो सके। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हमने एप्लीकेशन बनाने को दिया है 2 महीने से, लेकिन वो अभी तक बन नहीं पाया है, इतना हेक्टिक प्रोसेस हो गया है। So guys, please like and subscribe our channel. If you are not subscribed, please subscribe it and please press the bell icon so that you can receive the upcoming notifications at the earliest. Thanks for watching this and spending precious time. Have a nice time. Bye bye.